Hello and welcome. Today I shall try and explain chapter number 1 from the book Flamingo, the last lesson. Let us begin. About the author, Alphonse Daude, 1840 to 1897, was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War that lasted between 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. अल्फोंस डॉड है वो एक फ्रेंच कथाकार है और उन्होंने ये स्टोरी लिखी है जिसका नाम है द लास्ट लेसन और ये उन दिनों की बात करता है जब फ्रैंको प्रशियन लड़ाई हुई थी 1870 और 1871 के बीच में, जहाँ पे फ्रांस को हार नसीब हुई थी और प्रशिया जीत गया था, लेड बाय बिस्मार्क। इस कहानी में फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट है जिसके नाम है आल्सेस एंड लोरेन, वो भी प्रशियंस के हाथ में आ गए हैं। आइए आगे पढ़ते हैं कि इसकी क्या असर होती है स्कूल लाइफ पर। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles. But I had the strength to resist and hurried off to school. अब ये जो विद्यार्थी है छोटा सा जिसका नाम है फ्रांस, वो स्कूल जाने के लिए रवाना हो चुका है। हमेशा की तरह आज भी वो लेट है और उसे एक बात का डर सताया रहा है कि उसको तो आज डांट पड़ने ही वाली है, क्योंकि जो उनके जो टीचर है जिसका नाम है एम हैमल, वो आज उनसे सवाल करेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में और जिसके बारे में फ्रांस को कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर की तो लगता है कि वो स्कूल न जाए और बाहर कहीं और घूमने चला जाए, क्योंकि बाहर का वातावरण ही ऐसा कुछ सुंदर था। पंछी चहचहा रहे थे, खुले खेत उसे बुला रहे थे जैसे, और ये सब ज़्यादा आकर्षक था पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा। लेकिन कुछ भी करके वो हिम्मत जुटाकर स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है और बिल्कुल टाउन हॉल के करीब आता है, जो शहर का मध्य भाग है, वहाँ पे देखता है कि बहुत चहल पहल और कोलाहल मचा हुआ है, क्योंकि यहीं पे एक बुलेटिन बोर्ड हुआ करता था जिसमें इस दिन की सारी बुरी खबरें यहीं पे लिखी जाया करती थी कि कितनी लड़ाई हम हार गए हैं, किसकी ड्राफ्टिंग होने वाली है, वगैरह वगैरह। तो बिना रुके फ्रांस सोचता है कि अब क्या हो सकता है, लेकिन वो अपने रास्ते पे चलता रहता है। तो एक लोहार है जिसका नाम है वॉक्टर, जो अपने शागिर्द के साथ वहाँ पे खड़ा है। वो कहता है, इतनी जल्दी मत जाओ, तुम आहिस्ता चलोगे फिर भी स्कूल पहुँच जाओगे। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Wachter, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. तो मुझे लगा कि वॉल्टर मेरा मजाक उड़ा रहा है और जैसे तैसे करके मैं हमारे जो टीचर है मिस्टर हैमल उसके गार्डन तक तो पहुंच ही गया, लेकिन तब तक मेरी सांसें फूल गई थी। Usually when schools began, there was a great bustle which could be heard out on the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates,
already in their places, and M. Hamill walking up and down with this terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how blushed, how frightened I was. तो जैसे कि हमेशा की तरह जब स्कूल शुरुआत होती है तब बहुत सा चहल पहल और कोलाहल मचा रहता है स्कूल के अंदर. बच्चे यहाँ वहाँ से भागते रहते हैं, टीचर उनको शांत करने की कोशिश करते हैं, और यही सब कमोशन का फ़ायदा उठाना चाहता था फ्रांस, क्योंकि हमेशा की तरह वो लेट ही होता था और आज किसी की निगाहें पड़े उसके ऊपर वो जाके इस कोलाहल का फ़ायदा उठाकर क्लास में बैठ जाना चाहता था. लेकिन वो बाहर से देखता है खिड़की में से कि सब बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं और कोई कुछ आवाज़ नहीं कर रहा, और सब बच्चों के सामने उसको बड़ी शर्मिंदगी से क्लास में घुसना पड़ता है और सबकी निगाहें उसके ऊपर है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाता है. But nothing happened. Mr. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." लेकिन हुआ कुछ नहीं. इनके जो टीचर है मिस्टर हैमिल, जो बहुत ही सख्त किस्म के आदमी थे, लेकिन आज उसने कहा, चिंता मत करो छोटे फ्रांस, जाओ अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, हम तुम्हारे बगैर ही शुरुआत करने वाले थे. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teachers had on his beautiful green coat, his frilled shirt and little black silk cap all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो मैं जैसे तैसे करके बैठता हूँ और देखता हूँ कि मेरे जो टीचर है मिस्टर हैमो, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक हरा कोट पहन रखा है और फ्रिल्ड शर्ट पहनी है और काले रंग की रेशमी टोपी भी पहन रखी है. ये लिबास वो आम दिनों पे नहीं पहनते थे, ये तभी पहनना चाहता था जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो तब. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. सारी स्कूल में एक अजीब सा माहौल था, बहुत ही शांत माहौल था, और जो पीछे की जो बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ के आज वहाँ पे शहर के कुछ चुनिंदा लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक हाउसर नाम का आदमी भी था, भूतपूर्व मेयर भी थे और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी वहीं बैठे हुए थे, और कुछ और लोग भी थे वहाँ पे. सब दुखी थे, और हाउसर जिसके पास एक ओल्ड प्राइमर था, उसने फैला के रखा था और चश्मे पहन के उसे पढ़ रहा था. तो मैं सोच रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी क्या हो रहा है. मेरे जो टीचर है मिस्टर हैमिल कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं और अपनी सीरियस अंदाज में जो हमेशा उन्होंने इस्तेमाल किया है आज कहने लगे, बच्चों, आज मैं आपको आखिरी फ्रेंच लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ. ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से कि कल से सबको सिर्फ जर्मन भाषा का ज्ञान ही दिया जाएगा. कल आपके नए जर्मन टीचर आ जाएंगे. आल्सेस और लोरेन में यही फरमान जारी किया गया है. आज आपका आखिरी फ्रेंच लेसन होगा और मैं चाहता हूँ कि आप पूरा ध्यान दें. What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. तो ये जब आवाज़ सुनता है फ्रांस, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके सर पे बिजली गिर गई है. तो उसको याद आता है कि जब वो टाउन हॉल से गुजर रहा था, शायद यही बात वहीं पे लिखी गई थी. My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up.
M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. फ्रांस सोचता कि क्या ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन होगा, तो उसको ये डर सताने लगा कि आज तक उसने कोई इस पे ध्यान नहीं दिया, अपनी भाषा पे। उसको दर्द हो रहा है कि उसने कभी इसको सीखने की कोशिश नहीं करी। जो किताब थी उसको भारी लगती थी और जो इतिहास पढ़ाया जाता था वो भी उसे उतना दिलचस्प नहीं लगता था, लेकिन आज वो सब छूटने वाला है। और इस तरह से जो उनके टीचर हैं हैमल, वो भी आज उनको छोड़ के चले जा रहे हैं, शायद उसको कभी नहीं मिलेंगे। वो इस बात को भूल रहा है कि उनकी जो स्केल थी, लकड़े की हो या चाहे लोहे की हो, वो उससे कितना डरता था, लेकिन अभी उसका उससे लगाव हो गया है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more. बेचारा इसीलिए वो आज क्लास में आया है अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर, ताकि वो इस मौके को ऑनर कर सके कि ये उसका आखिरी दिन है। इसी वजह से गांव के जो बुज़ुर्ग लोग हैं क्लासरूम में आए हैं, क्योंकि एक तरह से उनको भी एक खेद है कि आज फ्रांस गुलाम हो गया है और अभी फ्रेंच भाषा कभी सीखने को नहीं मिलेगी। और 40 साल की इनकी जो वफादारी पूर्वक जो सर्विस इन्होंने निभाई थी, वो आज के दिन ख़त्म होने वाली है। While I was thinking of all this, I heard my name called. मैं जब सोच ही रहा था, अचानक मेरी आवाज़ मैंने सुनी, किसी ने मेरा नाम पुकारा। वो मेरे टीचर ही थे कि फ्रांस पढ़ना शुरू करो। लेकिन मुझे तो पार्टिसिपल के बारे में कुछ मालूम था नहीं, क्योंकि मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं था। काश मैं ये सब कह पाता एक भी गलती किए बगैर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं गलतियाँ कर बैठा। और मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और मुझ में उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने टीचर से अपनी आंख मिला पाऊँ। I heard Mr. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. तो मेरे टीचर मेरे करीब आते हैं और कहते हैं, फिक्र मत करो फ्रांज, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। हम सब ने अपने आप को यही कहा है कि मैं कर लूँगा, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं सब सीख लूँगा। लेकिन देखिए अब कहाँ पे आप पहुँचे हैं। Now these fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. देखिए हम अभी कहाँ पे आ चुके हैं। कल हमें बाहर के लोग पूछेंगे, कैसे फ्रेंचमैन हो आप? आपको ना आपकी भाषा पढ़नी आती है, ना लिखनी आती है, ना बोलनी आती है। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो फ्रांस। हम सब ने गलतियाँ करी हैं और हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or the mills, so as to have a little more money. And I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो दोष हम सबका है। शायद तुम्हारे माँ बाप भी यही चाहते थे कि तुम खेतों में जाओ, मजदूरी करो, मिलों में जाओ, कुछ पैसे कमा के लाओ, ताकि उनकी मदद हो सके। गलती मेरी भी है, क्योंकि मैंने भी आपको मछली पकड़ने के बहाने आपको क्लास से छुट्टियां दे दी थी और मैंने ये भी कहा था कि जाओ मेरे गमलों को पानी दे के आओ। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. फिर आगे बढ़ते हुए मिस्टर हैमल कहते हैं कि फ्रांस में जो भाषा बोली जाती है फ्रेंच, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन भाषाओं में से है और हमें इसे
संभाल के रखना होगा और हमें इसका ज्ञान हमेशा अपने पास रखना होगा, क्योंकि जब भी हम गुलामी की जंजीर में जकड़ जाते हैं, जब तक हमारी भाषा हमारे साथ होती है तब तक उस पिंजरे की चाबी हमारे पास होती है, और जो प्रजा अपनी भाषा भूल जाती है वो हमेशा के लिए गुलामी की जंजीरों में कैद हो जाती है. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. So easy, I think, too, that I never listened so carefully. फिर टीचर है जो वो व्याकरण का पाठ पढ़ाने लगते हैं, तो फ्रांस को बहुत ताज्जुब होता है कि कितनी आसानी से वो सब कुछ समझ रहा है. आज कितना आसान है सब. मैंने इतनी ध्यान से कभी नहीं सुना था. And that never explained anything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि टीचर एक दिन में हमको सब कुछ सिखा देंगे और उसी वक्त सारे का सारा ज्ञान है हमारे दिमाग में वो बिठा देना चाहते हैं. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in beautiful round hand. France Alsace, France Alsace. जैसे ही व्याकरण ख़त्म हुआ, एम हैमल ने हमें एक लेसन दिया राइटिंग में. नई कॉपियाँ थी सब बच्चों के लिए और सब बच्चे लिखने लगे. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of her desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the crashing of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. तो बच्चे अपनी किताबों में लिखने लगते हैं, कोई इधर उधर कोई देखता नहीं, कोई जंतु क्लास में आ जाता है तो किसी की तरफ कोई तवज्जो देता नहीं. सब एक ही तरह से लिख रहे हैं सब लोग, और एक ही आवाज़ आ रही है जो पेन की होती है किताब में लिखने की आवाज़. छत पे कुछ कबूतर थे जो गुटरगू किए जा रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि क्या कल से ये कबूतर भी जर्मन भाषा बोलेंगे या उन्हें भी अपनी ज़बान बोलने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि इंसान तो बंदी बन जाता है, लेकिन क्या ये कबूतरों को भी बंदी बनाया जाएगा. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then another, as if he wanted to fix in his mind just how everything he looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. तो जब भी मैंने अपना सर उठाया देखने के लिए कि टीचर क्या कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि वो बस एक मूक भाव से चीज़ों को देख रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ों को देख रहे हैं. 40 साल से वो उसी जगह पे बैठे हैं. उनका गार्डन था, खिड़की से बाहर उनका गार्डन दिखता था, और वो क्लासरूम में सबके सामने बैठ जाया करते थे. और ये डेस्क और बेंचेस है सब पुराने हो चुके हैं. Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. सारे डेस्क और बेंचेस पुराने हो चुके थे, सिर्फ बाहर जो अखरोट के पेड़ थे वो लंबे हो गए. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. और ये सब देखकर उनका दिल टूट गया होगा, और उनकी जो बहन थी ऊपर के कमरे में पूरा सामान पैक करी थी, और उनको कल मुल्क को छोड़ देना था. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history. And then the babies chanted their ba, be, bi, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, the last lesson. लेकिन टीचर में उतनी हिम्मत थी कि सारे लेसन उसने आखिरी तक सुने, और जब लिखना ख़त्म हुआ, इतिहास का पाठ भी सब बच्चों को पढ़ाया गया, और ओल्ड हाउज़र वहाँ पे जो खड़ा था बुज़ुर्ग, उसने अपने चश्मा पहनकर प्राइमर हाथ में लेकर सब कुछ पढ़ा उनके साथ. वो
आप देख सकते हो कि वो भी अंदरों अंदर रो रहा था। उसकी आवाज़ में अजीब सी कंपन थी, थोड़ा सा मजाक का भी, थोड़ा थोड़ा मजाक भी लग रहा था, लेकिन हम सब रोना भी चाहते थे, साथ साथ हंसना भी चाहते थे। कितनी अच्छी तरह से मुझे अपना आखिरी पाठ याद रह गया। हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट, दैट लास्ट लेसन। All at once, the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians, returning from the drill, sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. इसी तरह 12 बज जाते हैं और चर्च की बेल बजती है, और उसके बाद ट्रम्पेट्स की आवाज़ यानी ब्यूगल की आवाज़ सुनाई देने लगती है, और प्रशियन सोल्जर्स मार्च करते हैं और शहर में घुस जाते हैं। इसी वक्त मिस्टर हैमल खड़े हो जाते हैं, उसका चेहरा फीका पड़ जाता है और वो गर्व से खड़े होते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको इतना बुलंद आज से पहले कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। मेरे दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ दब जाती है, वो आगे कुछ कह नहीं पाते। ब्लैक बोर्ड की तरफ वो टर्न करते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और चौक से लिखते हैं पूरी ताकत के साथ, जितना बड़ा लिख सकते हैं वो, वीव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. फिर वो रुकते हैं और अपना सर दीवार की तरफ करके कुछ कहे बिना हाथ से कहते हैं जैसे, स्कूल आज ख़त्म